Assalamu alaikum and good evening, guys. Walaikum Can salam. you tell me, is my screen visible? Yes, sir. Record हो रहा है कि नहीं system? No, it is getting recorded. Fine. So in the previous classes, we have seen the nomenclature of the IPAC nomenclature of coordination complexes. Right. Today we are going to start with the bonding in coordination complexes. There is one topic in middle, according to NCERT, that is isomerism. Okay. But in order to understand isomerism, even if you look at isomerism, the topic, here you will see there are different type of isomerism in octahedral structure, in tetrahedral structure, in square planar structure. So first of all, you will have to understand, right, what is octahedral, what is square planar, and what is tetrahedral. Without understanding and getting a hang of octahedral, square planar, and tetrahedral, how are you going to talk about isomerism itself? So first of all, we will look at the bonding in coordination compounds, where we will learn about the different geometries that are available for the coordination complexes. And after we are done with the bonding theories, we will go to the isomerism topic. Is that clear? Yes or no? Krishnapriya, Yusuf, Arsalan, and Iram? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, Arsalan, one thing, I need proper notes, okay? I don't want you to write anything just ऊपर से जो जैसा आप last time कर रहे थे. I need proper notes from here, okay, Arsalan? Yes, sir. And this is for everyone. Arslan ने बस कह दिया था last time. इस वजह से Arslan को especially कह रहे हैं. Otherwise, you have to make proper notes. Okay. I hope the students know about this already. Okay. Also, can you please turn your videos on? I have started the focus mode. And please write the topic: bonding in coordination compounds. Bonding in coordination. How was your exhibition, Krishnapriya? It was nice, sir. I had fun. Okay. Did you make anything? Any project did you have? Yes, sir. I was doing a Slayer exciter. Model of a Slayer What? exciter. Slayer exciter. This is a What is solid state that? model of Tesla coil. अच्छा okay, fine. और okay, ठीक है, Tesla coincidence. Okay, bonding in coordination complexes. There are multiple bonding theories in coordination complexes. We have to study only two. First is the valence bond theory. Valence bond theory, which we call VBT. Second is the crystal field theory. Crystal field theory, which we call CFT. And third is the ligand field theory, which is known as LFT. And then we have the molecular orbital theory. Okay, so we have to only learn about the first two, valence bond theory and crystal field theory. We don't have to learn about ligand field theory and molecular orbital theory. However, ligand field theory से कुछ concepts जो हैं NCERT ने crystal field theory के अंदर ही उसको डाल दिया है, ठीक है? So those are not purely crystal field theory. आपके मतलब उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं कि ligand field theory टाइप की कोई चीज भी होती है, but they have included one concept of ligand field theory. And they have stated it inside the crystal field theory itself. ठीक है? But अभी तो crystal field theory नहीं देखना है. We'll start with the valence bond theory. ठीक है? So please write the heading valence bond theory. Sir, हाँ जी बताएं. are we not doing isomers? No, not right now. Isomerism. अभी isomerism. Because in isomerism you will have square planar, tetrahedral, octahedral. So पहले वो structures तो पता चल जाए वो होते क्या हैं. What are those different structures, है ना? तो आपको यहाँ से पता चलेगा. Once you get acquainted with the structures, वो तब फिर आपको isomerism समझने में बहुत आसानी होगी. ठीक है? That's why.
आइसोमेरिज्म एंड में बिल्कुल, ठीक है। चलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नाउ इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको एक चीज जो याद करने की है, दैट इज द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड हाइब्रिडाइजेशन, और इस हाइब्रिडाइजेशन से कौन सी ज्योमेट्री आती है। Okay, so if the coordination number is 4, if the coordination number is 4, तब आपके पास there are two different hybridization which are possible. एक तो आपके पास क्या है, sp3, for which the geometry I hope you know it is tetrahedral. For 4 you can also have dsp2. You can have dsp2 which is what, which is square planar. अच्छा dsp2 भी हो सकता है और sp2d भी हो सकता है, लेकिन जनरली dsp2 ही रहता है, वैसे स्लैश करके आप लिखा देते हैं। यू कैन ऑल्सो हैव sp2d, ठीक है, बट आपको जनरली जो मिलेगा दैट विल बी dsp2 ओनली, ठीक है। नाउ इन dsp2 यू विल हैव द ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, when you have coordination number 5 then you will have sp3d, or you can also have dsp3, in which the geometry is going to be trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. When you have coordination number 6, वहां पे आपके पास क्या हो सकता है, you can have sp3 d2 or d2 sp3. The geometry in this case will be octahedral, ठीक है। अब हमने डायरेक्टली आपको क्यों बता दिया, बिकॉज आई होप आपको ये सारी चीजें हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री, यू मस्ट रिमेंबर दिस फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड। इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव डन टिल ऑक्टाहेड्रल, है ना, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल, सारी चीजें 11th क्लास में कराई जाती है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई हैव डायरेक्टली रिटन द हाइब्रिडाइजेशन एंड द ज्योमेट्री। ये सारी चीजें आपको कुछ कुछ याद आ रही हैं, यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस, ऑल ऑफ दीस। यूसुफ, अरसलान, इरम, कृष्णप्रिया, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इरम आपको थोड़ा बहुत, हाँ ना, ठीक है, चलिए वो थोड़ा ही थोड़ा चाहिए, बस आपको नाम ऐसा लगना, ऐसा नहीं लगना चाहिए पहली बार सुन रहे, हाँ सुना तो था याद नहीं है, तब तक भी चलेगा, ठीक है, सुना तो था लेकिन याद नहीं है। इरम, अरसलान एंड यूसुफ, कैन यू प्लीज हैव योर वीडियोस ऑन, फोकस मोड तो ऑन है ना, हाँ क्या हो गया जी, थैंक यू। Now, before going to details of valence bond theory, आपको एक चीज जो है ना बिल्कुल ऐसे नोटबुक में आपके लिखी रहे तो ज्यादा अच्छा है, दैट इज द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उन पर सिंबल्स एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आल्सो। सो आई एम राइटिंग द 3D सीरीज यानी कि द फर्स्ट डी ब्लॉक, फर्स्ट सीरीज इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, which is scandium, then you have titanium, शक्ति, विक्रमन, फेको, निकूजन। शक्ति, विक्रमन, फेको, निकूजन, ठीक है ना। सो इसके लिए थोड़ा सा हम स्पेसिंग कर दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से लिखिए, शक्ति, विक्रमन, फेको, निकूजन, शक्ति, विक्रमन, फेको, निकूजन। ठीक है, प्लीज। सो बहुत ही आसान है यहाँ पे, दी एटॉमिक नंबर्स आर व्हाट, कोई बता सकता है एटॉमिक नंबर, किसी को याद है स्कैंडिनियम से?
Anyone? 20, 20, 21, 21, 21, 22, 23. 20. हाँ ठीक है, आप तो हाँ आप तो सब बता देंगे। 25, 26, 27, 28, फिर आपके पास आएगा 29, फिर आएगा 30। ठीक है, अब उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यू विल जस्ट फोकस, देखिए इससे पहले यू कैन रिमेंबर दैट, इससे पहले आर्गन है ना, आर्गन, आर्गन के बाद आपको क्या लिखना है? फॉर स्कैंडिनियम यू विल राइट इट विल बी 4s2 3d1, 4s2 3d1 है ना। अरे भाई आप लोग को ऐसा आता है ना, आर्गन 4s2 3d1, अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो भाई। कृष्णप्रिया, यूसुफ, अरसलान एंड अरब, Yes, sir. आप लोगों को पता है ना 21 अगर है आपके पास तो यू कैन राइट इट लाइक दिस 21, सो इट विल बी 1s2 2s2 2p6 Yes, sir. 2p6 3s2 फिर 3p6, फिर उसके बाद 4s2 4s2 3d1 3d1. है ना 21 के लिए। अब ये जो हमारे पास अंदर के, दिस इज व्हाट 10, और यहाँ पे 18, ये जो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 18 इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर्गन, हाँ या ना। फिर 4s2 3d1, बोलो भाई, देखा ना इससे पहले आप लोगों ने? कृष्ण भाई, Yes, यू हैव अ sir. क्वेश्चन और व्हाट? Yes, यू sir. हैव अ क्वेश्चन? हाँ जी बताएं, No. क्या हुआ? आप ऐसे हाथ रेस करते थे, बोला कोई सवाल? अच्छा I बस just ऐसे kept ही my था। hand. अच्छा अच्छा Yeah. अच्छा, ठीक है ठीक है, तो आर्गन रहेगा 4s2 3d1। अच्छा ठीक है, अगला क्या आ जाएगा बताएं? अगला आपके पास आ जाएगा 4, तो वैसे ही है s2d2, D2. फिर s2d3, ठीक है ना। अब उसके बाद यहां पे ध्यान रखना आपको s1d5, क्रोमियम का थोड़ा सा अलग होता था, याद आया? क्रोमियम एंड कॉपर के केस में यू हैड s1 एंड हाफ फिल की वजह से d5, देन Mn में वापस से s2d5। बट प्लीज आप लोग s2 वगैरह मत लिखिएगा, 4s2 3d5 लिखिएगा, हम जगह की कमी से 4s, आप लोग s2d5 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 4s2d5, ठीक है ना। Fe के लिए इट विल बी 4s2 3d6, दिस विल बी 4s2 3d7, 4s2 3d8। कॉपर के केस में ध्यान रखना है, इट विल बी 4s1 एंड 3d10, d10। जिंक में इट विल बी s2 एंड d10, s2 एंड d10। अगर आप लोगों को थोड़ा सा आपने पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया, 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3, 24 के केस में अलग रहेगा, 2 5 2 5। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो भाई। लिखने में अरे भाई लिखने में मशगूल है आप लोग, बोलना। Yes, sir. Yes, एटॉमिक sir. नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रिलेशनशिप दिखा। जब 21 है तो s2d1, 22 2 s2d2, 23 s2d3, क्रोमियम के केस में अलग रहेगा। Mn में s2d5 25 s2d6, ठीक है। सो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने की भी जरूरत नहीं है, फ्रॉम द एटॉमिक नंबर इटसेल्फ, फ्रॉम द एटॉमिक नंबर इटसेल्फ यू कैन गेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ क्रोमियम और किसके केस में, क्रोमियम, कॉपर और जिंक के केस में आपको डिफिकल्टी होगी, इट विल बी s2d10, यहाँ पे 3 0 है, नहीं s3, और यहाँ पे d0 कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। सो यू विल बी हैविंग, इनका केस आपको अलग रखना है बस, क्रोमियम का, देन यू हैव टू कीप अ डिफरेंट फॉर कॉपर एंड जिंक, ठीक है। इनका केस बस आपको अलग रखना है, अदरवाइज सारे बाकी जितने भी है उनके केसेस में क्या हो जाएगा, वॉट एवर बी द एटॉमिक नंबर, उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ऑल ऑफ इट एंड यस और नो प्लीज टेल मी, सबने लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, चलिए। Yes, sir. अब बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो फंडा था ना वो क्या है, समझ लीजिए। इफ वी नो दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक, इफ वी हैव एनी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और उसका हमने मैग्नेटिक बिहेवियर या फिर मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया, और व्हाट इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वहां से म्यू निको बोलते हैं इसको। इफ वी गॉट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, जो कि मेजर किया जा सकता है, ठीक है, विच कैन बी मेजर्ड, तो इफ वी हैव द मैग्नेटिक मोमेंट तब हम उसका ज्योमेट्री निकाल सकते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, I forgot the name of the device which measures magnetic moment.
मैग्नेटोमीटर होता है, जिससे मैग्नेटिक मोमेंट्स कैन बी मैग्नेटोमीटर। ठीक है, तो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है, ध्यान दीजिएगा, देखिए ना, सिंपल सी थ्योरी है इसकी। आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड यू मेजर्ड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, एंड इट केम इक्वल टू 0। कितना आ गया मैग्नेटिक मोमेंट, बताएं? मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया? 0। ठीक है, 0 का मतलब इट डज नॉट हैव एनी मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि दिस इज व्हाट, दिस इज डायामैग्नेटिक, है ना? ये क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। दैट मींस, see, if you don't have any unpaired electrons, then your magnetic moment will be 0। उसको डायमैग्नेटिक में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे? ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो जाएगा? सारे के सारे ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल बी पेयर्ड। अगर आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट विल बी पैरामैग्नेटिक, और वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी पेयर्ड, वहां पे कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देयर विल बी सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बस इसी चीज के बेसिस पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टिकी हुई है, और इसकी वजह से बहुत सारे इसके लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, सो यू विल राइट व्हाट इज द फंडा ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको लिखिए, इट इज जनरली, अब यहाँ पे देखिए जनरली का वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जनरली का मतलब कभी कभी ऐसा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम लोग प्रेडिक्ट नहीं भी कर पा रहे हैं कभी कभी। जनरली पॉसिबल टू प्रेडिक्ट the hybridization of a complex using VBT if we know the magnetic behavior of the complex। ठीक है, तो एक चीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात है, that you should know what is the magnetic behavior, so you should have some experimental data। आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा होना चाहिए, then only we can apply the valence bond theory। if you don't have any experimental data, तो वहां से आपको you cannot apply the valence bond theory ऐसे किसी कॉम्प्लेक्स में। so we are going to take examples। पहला एग्जांपल है आपके पास, you have cobalt, please don't write anything, ठीक है, cobalt NH3 6, and this particular complex it has a charge of 3 positive, and दूसरा कॉम्प्लेक्स है हमारे पास cobalt in which we have fluorine 6, there are 6 fluorine molecules here, ठीक है, F6, ठीक है, and you have the charge 3 negative, you have the charge 3 negative। now experimentally it was found that CONH3 6 it is diamagnetic। कैसा है ये? this is diamagnetic। and it was experimentally found that this fluorine complex, cobalt fluorine complex, it is paramagnetic। क्या है ये? Paramagnetic। From diamagnetic, I can infer that this will have no unpaired electrons. No unpaired electrons. And from paramagnetic, I can infer and I can deduce that it will have unpaired electron as unpaired electron। ठीक है, unpaired electron। Now, सबसे पहले we are going to treat the, हम लोग सबसे पहले किसको ट्रीट करेंगे? CONH3 3 पॉजिटिव को विल ट्रीट, मतलब ट्रीट का मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, देन विल अप्लाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर द पैरामैग्नेटिक। सबसे पहले देखिए, व्हेनेवर यू हैव टू अप्लाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टू अ पर्टिकुलर एलिमेंट, तो उसका आप सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए, नंबर 1 CONH3 6, ठीक है, 3 पॉजिटिव। यू विल कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहला आपका स्टेप क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम फाइंड करना आपको, तो कोबाल्ट के केस में चैट में बताएंगे आंसर, यू विल टेल द आंसर इन द चैट।
I've got only one answer. जल्दी बताएं. कृष्ण प्रिया ठीक है. यूसुफ, अरसलान, इरम, व्हाट हैपेंड? व्हाट्सएप में नहीं भेजना. नहीं इरम गलत है. देखिए बहुत आसान है ना यहाँ पे. कोबाल्ट विल हैव x, NH3 का कितना हो जाएगा 0 because it does not have any charge. Now the overall charge for this particular complex will be what? X plus 0 will be equal to plus 3. है ना भाई? इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है? 3 पॉजिटिव, राइट? सो x will be equal to plus 3 ना. और समझ में आई? अरे भाई भूल गए क्या आप लोग? देखो 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 देखो, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, Cr2O7 2 नेगेटिव रहता था. जब Cr2O7 2 नेगेटिव, यहाँ पे हम लोग को निकालना रहता क्रोमियम के लिए. सो हाउ वुड बी कैलकुलेट फॉर क्रोमियम? यू वुड कैलकुलेट 2x प्लस ऑक्सीजन साथ है, तो 7 into -2 इज इक्वल टू क्या लिख देते? 0 तो नहीं लिख देते, -2 लिख देते ना, इज इक्वल टू, बिकॉज दिस ओवरऑल थिंग, दिस ओवरऑल आयन, इट हैज -2 चार्ज. याद आया? याद आया कि नहीं याद आया? अरसलान, यूसुफ, इरम, ठीक है. चलिए कृष्ण प्रिया, आपका तो सही था. ठीक है. तो ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर दिस कोबाल्ट कितना है आपके पास यहाँ पे? इट इज +3. नाउ इफ इट इज +3, तो बी आपको करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव. ठीक है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव. तो सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट. कोबाल्ट कौन सा है बताइए? शक्ति विक्रमण फेको निकोजन. फेको 26 के बाद 27, राइट? सो दिस इज हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन. कोबाल्ट का लिखना है अभी 4s2 and 3d7. चलिए अब बताइए 4s2 3d7 से अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, इफ यू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द चैट प्लीज? चैट में बताएं क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफ आई रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स? व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यस, कृष्णा प्रिया सही है. वेटिंग फॉर अदर्स, यूसुफ, इरम, ये सारी चीजें देखिए इलेक्ट्रॉन्स का निकालना वगैरह सारी 11 चीजें है ना, 11 की चीजें. ठीक है, अच्छा इरम, ओके. व्हाट अबाउट अदर्स? देखते हैं. अरसलान, यूसुफ, ओके. अरसलान का आंसर नहीं आया. ठीक है, चलिए देखिए आप लोग सब कुछ भूल चुके हैं. जब 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहां से निकलेगा? आउटर मोस्ट शेल, करेक्ट है. सबसे बाहर जो शेल होगा उससे निकलेगा. सो विच इज द आउटर मोस्ट शेल? बताइए. व्हाट शेल्स आर वी डीलिंग विद? what shells are we dealing? We are dealing with the 4th shell as well as the 3rd shell. तो ज्यादा बाहर कौन होगा? Which will be outside 4th shell, right? So you, अरे भाई समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अरसलान याद आया नहीं याद आया? Yes, sir. So exactly it will be 4s0 और 3d में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के हो जाएगा 3d6. Is that clear? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान दीजिए जरा. Now you are going to make the orbitals. इससे क्या बनाएंगे हम लोग? ऑर्बिटल्स बनाएंगे. ठीक है ना. ऑर्बिटल्स कैसे बनेगा इसका देखिए. 4s0 3d6 में पहले आप बना लीजिए क्या. 1 2 3 4 and 5. ठीक है, ध्यान दीजिए अभी. You are going to have 6 electrons, right? 1 2 3 4 5 and 6 electrons. This is your 3d. ये कौन सा है? 3d. फिर उसके बाद आ गया 4s which is also empty, right? 4s भी तो empty है ना हमारा. 4s empty है हमारे पास. ठीक है, आपको पता होना चाहिए. अच्छा एक और चीज बताएं आप लोग. एक और चीज बताएं. अगर 4s है हमारे पास तो 4p भी होगा ना. इफ वी आर इन द 4th शेल, अगर 4th शेल आपके पास है ही तो 4p भी कहीं ना कहीं होगा. ये बताओ, ये बात समझ में आई ना? 4p भी हमारे पास है. अभी बस हम चीज बता रहे हैं, लिखने की कोई भी अभी जरूरत यहाँ पे नहीं है. लिखने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है. ध्यान दीजिए, अभी तो बस आपको इतना ही समझना है कि 4p होगा. ठीक है, इसको भी रहने दे. Now tell me according to the experimental data, my cobalt NH3 6, it is diamagnetic या paramagnetic? क्या बोला उन्होंने? What did they say? Diamagnetic या paramagnetic? Dia है para? Paramagnetic. Diamagnetic है ना. डाया है रे भाई. खैर आप लोगों ने लिखा नहीं होगा याद. डाया है ना, लिखा है आप लोगों ने. Yes, एकदम लिखा है कुछ आपने? डाया लिखा है ना. ठीक है, चलिए. डाया मतलब क्या? देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट? देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे लिखिएगा सिंस. देखिए क्या लिखेंगे हम लोग अगर आया तो, सिंस
complex is diamagnetic. Since complex is diamagnetic, ध्यान दीजिएगा, diamagnetic, pairing will take place. Pairing takes place. क्या होगी? पेयरिंग. अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन बचना नहीं चाहिए. अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन बचना नहीं चाहिए आपके पास, तो पेयरिंग के बाद कैसा दिखेगा? पेयरिंग के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा. आफ्टर द पेयरिंग विल आकर 86 कुछ इस तरह से बना देंगे. बात समझ में आ रही है? सही है. देखो भाई, किसी को कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ध्यान से देखिए. अगली चीज नाउ, अब ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा. अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के लिए सुनिएगा, यू नीड वेकेंट ऑर्बिटल फॉर द लिगेंड्स. एक चीज जो आपको याद रखनी है, नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल जो होने चाहिए हमारे पास, ऑर्बिटल्स will be equal to coordination number of complex. So how many bond the complex, the central metal ion is making with the ligands. ठीक है ना? तो हमारे पास 6 लिगेंड है and NH3 is unidentate, यानी एक ही तरफ से बॉन्डिंग कर सकता है, तो 6 बॉन्ड बनेगी. So I need how many vacant orbital, which is equal to 6. कितने vacant orbital चाहिए हमें? How many? Tell me guys. ये 6 का फंडा समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बोलो. 6 समझ में आया सबको? अरसलान, यूसुफ, इरम. Yes, sir. ध्यान रखना, इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. इट इज, हाँ अरसलान बोले. अरसलान, नो डाउट ना, 6 इज कमिंग फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. वी हैव ओनली 3, 1 2 3 ही हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल है. तो और बाकी 3 कहां से आएंगे? 4s के बाद जो भी होगा. व्हाट विल बी आफ्टर 4s? 4s के बाद होगा 4p, तो हम लोग 4p बोलेंगे. ठीक है ना? वी विल टेक 4p एज द वेकेंट ऑर्बिटल. अब हमारे पास 3 ऑर्बिटल नेक्स्ट जो अवेलेबल है. व्हाट इज द नेक्स्ट ऑर्बिटल्स अवेलेबल? दोज विल बी 4p. 4s के बाद 4p ही आता है ना. ठीक है. अब यहां पे देखो, ये d के 2 ऑर्बिटल, d2 sp3 हो गया. क्या सबको दिखा? हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? यहां से हाइब्रिडेशन मिला ना, हाइब्रिडेशन विल बी d2 sp3. D2 sp3 आप लोग इन ऑर्बिटल्स को लेंगे और कुछ इस तरह से ये विल ज्वाइन देम. D2 sp3 में कितने आ जाएंगे? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है. So these are the vacant orbitals. These are the vacant orbitals. और यहाँ पे NH3 को इस तरह से आप लोग दिखाएंगे कि NH3 यहाँ पे अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखेगा. ये NH3 ना, तो आपके पास NH3, it is giving electrons here, it is bonding like this. हाँ जी बताएं. एक सेकंड, हम थोड़ा साफ साफ बोले आप, आपकी आवाज हमको नहीं समझ आ रही है. सर D2 sp3 जो है ना, ये मुझे नहीं समझा कैसे. जो नंबर ऑफ वेक, देखिए हमारे पास जो फ्लोरीन थे 6 फ्लोरीन थे ना. अभी हमारे पास, सॉरी नॉट फ्लोरीन, NH3 था हमारे पास. अभी जो हमारे पास 6 NH3 थे, दे विल बी बॉन्डिंग विद द सेंट्रल मेटल एटम. करेक्ट है? Yes. और कैसा बॉन्ड बना रहे होंगे? आई होप यू गाइस रिमेंबर दैट दे विल बी मेकिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट? तो NH3 को क्या करना है? मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करना. ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा अपना. सेंट्रल मेटल एटम के पास इट शुड हैव वेकेंट ऑर्बिटल. जो भी ऑर्बिटल वेकेंट होगा वहीं पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, बिकॉज बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग. करेक्ट है? ये बात समझ में आई एकदम? ठीक है. और हाउ मेनी NH3 do we have? 6. हाउ मेनी NH3? 6 है ना, तो 6 बॉन्ड बनेगी. सो आई नीड 6 वेकेंट ऑर्बिटल. और जो 6 वेकेंट ऑर्बिटल होंगे, तो हमारे पास 2 तो हमको दिख रहा था यहाँ पे, D के 2 ऑर्बिटल वेकेंट है, फिर उसके बाद S जो था जहां से इलेक्ट्रॉन निकाला हमने. नाउ वी नीड 3 more ऑर्बिटल्स. दो 3 more ऑर्बिटल्स विल बी द 4p ऑर्बिटल्स, राइट? 4s के बाद 4p खाली होगा. सो नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू मेक द बॉन्डिंग होगी हाइब्रिडेशन के बाद. हाइब्रिडेशन किनका होगा? द ऑर्बिटल्स व्हिच आर गोइंग टू गेट द इलेक्ट्रॉन्स. व्हिच आर द ऑर्बिटल्स गोइंग टू गेट द इलेक्ट्रॉन? ये D के एक ऑर्बिटल, D का दूसरा ऑर्बिटल, S का एक ऑर्बिटल और P के ये 3 ऑर्बिटल. दीज आर गोइंग टू, गॉट दिस इरम? दीज D2 और S का एक और P के 3, दीज आर गोइंग टू बी इन द हाइब्रिडाइजेशन. समझ में आया? D2 sp3 अब
ठीक है, चलिए ध्यान से बिल्कुल आप लोग एक एक करके मैं चालू करें। जब विजिबल ना हो तो फिर बताइएगा। इज इट विजिबल टिल हियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए। इट इज जनरली वगैरह ये सब लिख लिया था आपने? यहां से लिखना है ना आपको, यहां से लिखना है ना? Yes, sir. ठीक है, चलिए। लेट मी नो, आई विल स्क्रॉल डाउन। Please raise your hand once you're done.
Please write as it is, okay? Then everyone. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next we have COF6, which is paramagnetic and it will have unpaired electron. Okay. Second is cobalt F6, which is having 3 negative, the overall charge. Okay, and it is going to have, which is going to have as unpaired electron. Okay, it will have unpaired electron. So for this also we'll start with what? Oxidation state of cobalt, which will be equal to, again देखिए यहाँ पे आपके पास cobalt को हम ले लेंगे X, right? Fluorine will have 6 into -1, right? Which will be equal to -3. So X plus 6 into -1, which will be equal to -3. Here you can say X minus 6 is equal to -3, and X will be equal to 6 minus 3, which will be equal to +3 again, right? So I can, अब हम directly यहाँ पे लिख दें इस तरह से, cobalt 3 positive electronic configuration will be argon 4s0 and 3d6. बताएं? It is as the last time only ना, cobalt 3 positive, yes or no? Yes, sir. From here you will see CO3 positive. यहाँ से आप एक चीज देखेंगे, I will write the orbitals. जो हमारे पास d6 orbitals होंगे ना, वो किस तरह से होंगे? ना हो गया 1 2 3 4. Now in this d6 I will write 1 2 3 4 5 and 6. Now please remember, as cobalt will have unpaired electron, तो यहाँ पे पेयरिंग करने की जरूरत है या नहीं है? बताएं, पेयरिंग करने की जरूरत है यहाँ पे? Tell me yes or no. It will have unpaired electron ना, तो बताइए क्या यहाँ पे पेयरिंग की जरूरत है या नहीं है? No, sir. Do we need pairing? Arsalan, आपको समझ में आया नहीं आया? Arsalan, I did not get answer, Arsalan, from you. No, sir. I didn't exactly understand कि pairing Yeah. करना है या नहीं. What is this meaning? It means Unpaired it's electron. yes, sir. So it's paramagnetic. It means paramagnetic, and it means that it will have unpaired electrons, correct? Yes, sir. So if we do pairing, तो unpaired electron बचेंगे क्या? नहीं, sir. तो फिर क्या पेयरिंग करें हम? No.
नो, ठीक है ना, विल राइट सिंस Okay. complex is paramagnetic, no pairing take place, pairing नहीं होगी, no pairing takes place, ठीक है, ध्यान रखिए, takes place. Another thing is that number of vacant orbital कितना होगा, number of vacant orbital कितने चाहिए हमें, number of vacant orbital, tell me. In this complex also it will be how many vacant orbitals is needed? अरे ना, coordination number बताओ, 6, right? 6. Do we have any vacant orbital here? यहाँ पे हमारे पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है ना, S0 जो था 4s वाला, राइट? वी हैव ओनली वन वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, 6 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, यू हैव 4s. प्लीज आई नीड द माइक्स ऑन ऑफ एवरीवन, कोई लिखेगा नहीं यहाँ पे, ध्यान से सुनिए सिर्फ आप लोग. यू हैव द 4s ऑर्बिटल व्हिच इज वेकेंट. व्हाट विल बी वेकेंट आफ्टर 4s? 4s के बाद कौन सा आता है बताइए? 4s के बाद 4p है ना, और फोर्थ शेल में ही रहना, फोर्थ शेल से आगे हम लोग जा नहीं सकते बिकॉज वी हैव द फोर्थ शेल ना, 4p हो गया. अब उसके बाद बताइए कौन सा आएगा? 4D. 4p के बाद 4d, राइट? और 4d के कितने चाहिए होंगे? 1 2 3 4 हो गया, तो d के सिर्फ 2 चाहिए आपको. 4d के कितने ऑर्बिटल्स चाहिए? 2 ऑर्बिटल्स ऑफ 4d. ये आपके कहां से आ जाएंगे? 4d से आ जाएंगे. नाउ इफ यू लुक एट दी हाइब्रिडाइजेशन, इरम बताएंगे, इरम बताइए कैसे बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन? s बोले, माइक ऑन करके. S P3 हाँ, p3 D2. d2 समझ में आया आपको? ठीक ना. अब यहीं से these orbitals they will एक और इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है. एंड these orbitals will be filled, ये these cross are just the electrons, ठीक है. these will be filled by F negative जो आपके पास है ऑर्बिटल, ठीक है. F negative से ये फिल होंगे. और I mean the way I am writing now, I am writing like this only because I have seen the papers of toppers of class 12th और वो इसी तरह से लिखते हैं, ठीक है. और वो टॉपर मतलब हमने कहीं से टॉपर नहीं निकाला, वो सीबीएसई दे रिलीज द पेपर्स ऑफ टॉपर्स. जो टॉपर होता है ना, उनका वो पेपर रिलीज करते हैं, तो उनके में ऐसे ही लिखा हुआ. तो हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी ऐसे ही लिखें. ठीक है, ध्यान से देखिए. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब तक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, टिल वी आर लर्निंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड वी आर नॉट डन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो ये लाइन आपका जो है ऐसा रहेगा. सिंस द कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, नो पेयरिंग विल टेक प्लेस, बट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी विल टेल कि कौन सा लिगेंड पेयरिंग कराएगा, कौन सा लिगेंड पेयरिंग नहीं कराएगा, ठीक है. तो ये जो लाइन है आपका ना, व्हेन वी लर्न क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो उस टाइम इवन फॉर द वीपीडी केसेस यू विल हैव टू चेंज दिस लाइन. वहां पे आपको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दिस लिगेंड के बारे में एक प्रॉपर्टी लिखेंगे, the pairing will take place. अभी आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में what will happen, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में you will be given the experimental data कि पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है, ठीक है. चलिए अब एक सवाल करें हम लोग, समझ में आया ना सबको? ठीक है, we will do a question जहां पे आप लोग को दिया रहेगा कुछ. अच्छा, बस हम उससे पहले ना एक चीज बता देते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट इज इंपॉर्टेंट थिंग. मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है. मैग्नेटिक मोमेंट,
Do you guys know what is magnetic moment? Is anyone seeing something? Krishnapriya, you're saying something? No, sir, that was my sister in the background. I'm sorry. अच्छा, fine. So magnetic moment के लिए you have mu is the sign for it, and mu is equal to, किसी को याद होना चाहिए 11th standard से, किसी को नहीं याद? Root of n into n plus 1, I guess. That's correct. Root of n into n plus 1, है ना? And the unit of magnetic moment is Bohr magneton, which is Bm. ठीक है? And what is n here? N is equal to number of unpaired electrons. Number of unpaired electrons. Number of unpaired electrons. ठीक है? Please write this question. Basically, अगर ये बोल रहे हैं that the spin only magnetic moment of MnBr42 negative is 5.9 Bohr magneton, इसका मतलब it is what? Paramagnetic या diamagnetic? इसमें unpaired इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे? बताइए. There In the will chat, be please. In the unpaired chat में बताइए. असलान सही है, कृष्णप्रिया सही है. व्हाट हैपेंड? एरम और यूसुफ बताएं क्या ख्याल है आपका? अगर 5.9 Bm है तो क्या होगा? इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा? चैट में बताएं. होगा. ठीक है. यूसुफ, व्हाट अबाउट यू? I didn't understand. तो फिर कहाँ थे आपका? तो ये कैमरा बंद करके आप उठ फुट के जा रहे हैं इधर, मतलब कि. डिड यू राइट दिस पार्ट? हाँ यूसुफ. Yes, sir. देखिए, अच्छा एक बात बताएं. मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, यानी कि n इज व्हाट? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है. व्हेन अगर आपके पास म्यू जीरो कब होगा? म्यू कैन बी जीरो ओनली इफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज जीरो, है ना? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी हुआ, इफ देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन आल्सो म्यू विल बी नॉट जीरो. करेक्ट है? Correct, sir. अब पलट के मतलब आप पुट करके देख सकते हैं n is equal to 1 के केस. ठीक है. अब एक बात बताइए, इफ दे आर सेइंग दैट द मैग्नेटिक मोमेंट इज 5.9, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ होगा. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयर विल बी सम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन ओनली वी आर गेटिंग म्यू व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0. पास समझ में आई यूसुफ? Yes, sir. ठीक है. सो दैट मींस MnBr4 नेगेटिव, इट इज व्हाट इट इज, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. वहां पे पेयरिंग हम लोग नहीं करेंगे. ठीक है. Okay, sir. तो बेसिक हमको क्या पता चला? MnBr4 2 नेगेटिव. Two negative as unpaired electron. Any idea what is the coordination number? ये बता दें यहाँ पे. What is the coordination number of the complex Mn का coordination number कितना हो जाएगा? चैट में या फिर इशारे से बता दे सकते. अरसलान, आप ऐसे दया की तरह क्या क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं? अच्छे से बताइए ना आप. ठीक है, बट आपके ऐसा क्वेश्चन मार्क वाला 4 क्यों था? 4 इज करेक्ट आंसर, बट आपके ऐसा क्वेश्चन मार्क वाला 4 क्यों था? हाँ, ऐसे बिल्कुल फिक्स करके रखे ना, दया की तरह ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं आप हाथ को अपने. ठीक है. हाँ ठीक है. अब 4 ठीक है.
ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बिकॉज Br 4 है एंड Br इज मोनोडेंटेट। अब देखिए जो मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और सब नहीं जानते उनको पहला लेक्चर वॉच करना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड इफ यू हैव नॉट गॉट द लेक्चर्स यू मैसेज मी। अगर आपको पुराने लेक्चर्स नहीं मिले जो पहले 2 क्लासेस थे तो प्लीज मैसेज मी, आई विल सेंड यू द लेक्चर्स, ठीक है। MnBr 4 नेगेटिव, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, ए पार्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn, ठीक है। फिर बी पार्ट में यू विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn, ठीक है। Mn है जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा इसका, उसके हिसाब से आपको उसका ये निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Mn2+3+ जो भी मिलेगा आपको, ठीक है ना। सी पार्ट में क्या करना होगा आपको, और व्हेन यू आर राइटिंग Mn2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव यू विल रिमूव द s इलेक्ट्रॉन पहले, उसके बाद बाकी इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू विल हैव टू सी द नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स। वेकेंट ऑर्बिटल्स कितने होने चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल्स मस्ट बी इक्वल टू जो कोऑर्डिनेशन नंबर है विल बी 4। उसके बाद आप लोग हाइब्रिडेशन करेंगे। चलिए कम से कम ए और बी करके बताएं हमको, आई थिंक इट शुड नॉट टेक मोर देन 3 मिनट्स। ए और बी ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए, ठीक है। 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, 3 मिनट दे रहे हैं हम, जल्दी कीजिए। कृष्ण प्रिया करेक्ट। यस कृष्ण प्रिया करेक्ट। ठीक है, एकदम सही है। अब आपको क्या करना है, वो डब्बा 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 बनाना है ना। आप पहले लिखेंगे इस तरह से, सिंस MnBr, सिंस द कॉम्प्लेक्स इज, सिंस द कॉम्प्लेक्स हैज अनपेड इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस। फिर D5 को लिखेंगे, ठीक है, करिए इस तरह से। उसके बाद फिर आप पूछेंगे, अच्छा उतना करिए, वेकेंट ऑर्बिटल तक कम से कम वेकेंट ऑर्बिटल 4 होने चाहिए। यूसुफ एंड अरसलान, अभी तक आपका आंसर नहीं आया है, यूसुफ एंड अरसलान। Sending, sir. ओके, हाँ सही है अरसलान, सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें फिर। कल आप लोग की छुट्टी है कि नहीं स्कूल में, डू यू हैव हॉलिडे टुमारो? Yes, sir. We do. एकदम आपका नहीं है? नो सर। 2 अक्टूबर है कल, गांधी जयंती। हाँ सर, कंपटीशन। सॉरी, फिर भी नहीं है। आपका ना माइक बहुत खराब है, आपकी आवाज सही से नहीं आती है। ओ भाई मेरे यूसुफ, यूसुफ
Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn2 पॉजिटिव करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा, बताएं। Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक आपने पिछले वाले सवाल किया ना, कोबाल्ट वाला किया है आपने, Yes, sir. उसमें देखिए जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्या लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या लिखा है, कोबाल्ट P पॉजिटिव ना, जो भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, राइट। Yes, sir. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn2 पॉजिटिव करना पड़ेगा, बिकॉज वी गॉट द इलेक्ट्रॉनिक सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 पॉजिटिव, ठीक है। राइट, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn2 पॉजिटिव, हम लिखिए जरा उसको। ठीक है गाइस, प्लीज देखिए, आपको मिलना चाहिए आर्गन 4s0 और 3d5, दिस शुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप यहाँ पे देखिए डब्बा बनाया है ना, आप डब्बा बनाए 1 2 3 4 और एक 5 है, ठीक है। अब आपके पास 5 में 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देन 4s0 भी आपके पास 4s वेकेंट है, दिस इज 3d एंड दिस इज 4s, राइट। नाउ टेल मी हाउ मेनी वेकेंट ऑर्बिटल डू आई नीड, कितने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए हमें? 4, sir. 4 चाहिए, हमारे पास है कितना? 1. 4s। 4s के बाद कौन वेकेंट होगा? मेरा चैट में बताएं ना, बहुत सारे लोग का आंसर निकलने वाला है, शायद चैट में बताएं। व्हाट विल बी वेकेंट आफ्टर 4s? 4s के बाद कौन सा ऑर्बिटल वेकेंट होगा? व्हाट ऑर्बिटल्स वुड बी वेकेंट आफ्टर 4s? हाँ जी, कृष्ण प्रिया सही है, यूसुफ सही है, वेरी गुड, एकदम वेरी गुड। और 4p के हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन, अब बताइए कितने लेंगे 4p का? कितना, 1 2 3 3, कितना कितना लेंगे 4p के? कितने ऑर्बिटल्स लें? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स डू वी नीड मोर? एक हमारे पास है, और कितने चाहिए? एक हमारे पास है, और कितना चाहिए? 3 मोर, राइट। तो 4p 3 ले लेंगे, 4p के तीनों ले लिया हमने ना, बस हो गया। अब बस यहाँ क्या करना बताओ, इनका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, क्या मिलेगा? इरम बताएंगी, इरम व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन नाउ? sp3 p3, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी sp3 की वजह से? ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेबल देखो, टेबल Tetra. sp3, वेरी गुड, टेट्राहेड्रल। अरे भूलो भाई, आसान है ना, थोड़ा लंबा है हम समझ सकते हैं, लेकिन डिफिकल्ट तो नहीं है, हो जाएगा ना आप लोगों से, बताएं गाइस, हो जाएगा? चलिए करेंगे, Yes, sir. सर गुड। If you got this, yes or no, please tell me. Got it. हो गया? Yes, sir. सर ठीक है, ध्यान रखिए। Listen. When we talk in the case of octahedral complexes, ठीक है ना, तो octahedral complexes के केस में you have two different choice, मतलब दो तरह के आपके पास आ सकते हैं, जैसा कि हमने कोबाल्ट वाले केस में देखा था। In the cobalt case you saw that one hybridization was D2sp3, एक हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? D2sp3, ठीक है, और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन क्या था यहाँ पे? इट वाज sp3d2, ठीक है, sp3d2। If you see closely,
in sp3d2 the d orbital that we are using, ये जो हमारे पास d orbital है, this is 4d, ठीक है, and the d orbital that we are using in d2sp3, it is what, this is 3d, करेक्ट है गाइस, ठीक है। इसी वजह से d2sp3 को, बिकॉज वी आर यूजिंग द इनर d ऑर्बिटल, हम लोग कौन सा d ऑर्बिटल यूज करें, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, और जब हमारे पास इफ वी आर यूजिंग द d ऑफ आउटर शेल, जो आपके पास क्या है 4d यूज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। प्लीज सी हियर गाइस, आप लोग एक रिमार्क लिखेंगे, रिमार्क, complexes that have d2sp3 that have as a d2sp3 hybridization are called inner orbital complex, which have sp3d2 hybridization are called outer orbital complex. याद रहेगा, ठीक है, ओके, ध्यान से देखिए। अब एक बात बताएं, जब हम d2sp3 या sp3d2 के बारे में बात हम जब कर ही रहे हैं, तो साथ साथ एक और चीज हम लिख सकते हैं, देखिए कॉम्प्लेक्स के हमने देखे दो किस्म, राइट, एक था हमारे पास क्या, d2sp3, ध्यान से देखिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, d2sp3 एंड द अदर वाज sp3d2, द अदर वाज sp3d2, इसको हम लोगों ने नाम दिया, दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको हमने नाम दिया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बताइए किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इनर के पास या आउटर के पास, देखो जरा, देख के बताओ, कोबाल्ट वाले केस में देख के बताओ किसके पास थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सर d2sp3 के पास था अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड था d2sp3 के पास है, ध्यान से देखो, सर sp3d2 के पास हाँ sp3d2 के अंदर था, देखो असलन ठीक से, ओके, तो दिस हैड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और प्लीज रिमेंबर एक बात बताएं, ठीक है ना, पेयरिंग करने, मान लीजिए पेयरिंग करना है, ठीक है ना, पेयरिंग करना, ध्यान दीजिएगा, पेयरिंग करना है, बट 3D में है आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बताइए, 5, ठीक है, इफ यू आर हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन, तो पेयरिंग करने के बाद भी आपके पास, पेयरिंग करने के बाद भी आपके पास क्या एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच नहीं जाएगा, बताएं, 1 2 3 4 एंड 5, पेयरिंग अगर हम कर भी दें यहाँ पे, तो वी विल स्टिल हैव 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, है ना, बोलो भाई। तो देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ना ये एक लिमिटेशन भी हो जाती है, लिमिटेशन क्या हो जाती है, दैट दिस इज पैरामैग्नेटिक, दिस इज पैरामैग्नेटिक, अब समझ में नहीं आता है पैरामैग्नेटिक, बहुत उसमें भी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर इज वेरी लो, इन दैट केस पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर लो है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, d2sp3 हम लोग को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज हम कह सकते हैं, अगर पेयरिंग हो रही है, इफ देयर इज पेयरिंग हैपनिंग, देन स्पिन 0 हो, ये पॉसिबल, मतलब ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, दैट स्पिन इज ऑलवेज 0, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो आपको निकलेगा, इट विल नॉट बी ऑलवेज 0, लेकिन लो जरूर होगा, इट विल बी व्हाट, इट विल बी लो फॉर श्योर। इस वजह से जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। और जो हमारे पास आउटर ऑर्बिटल होता है जिसमें पेयरिंग नहीं होती है, देन फॉर श्योर दीज विल बी व्हाट, हैविंग हाई स्पिन, इनके पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। एक और जो इनका लो स्पिन का नाम है, इनको बोलते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस, क्या बोलते हैं, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस। ये एनसीईआरटी में स्पिन पेयर्ड है, अभी तक सीबीएसई ने पूछा नहीं है इसके बारे में, ये लफ्ज अभी तक
बोर्ड एग्जाम नहीं आया नहीं है ना, इंतजार है जब आ जाए। स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए प्लीज राइट दिस डाउन। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को लो स्पिन, आउटर वाले को हाई स्पिन, ठीक है। स्पिन, एक सेकंड, इसको स्पिन पेयर्ड नहीं बोलते भाई, आउटर वाले को स्पिन फ्री बोलते हैं, ठीक है ना, माय बैड, दोनों जगह स्पिन ये लिख दिया। इनर ऑर्बिटल आर लो स्पिन एंड स्पिन पेयर्ड होता है, इसमें पेयरिंग टेक्स प्लेस, और outer orbital complexes they have high spin in which pairing does not take place. यूसुफ आज आप लग रहा है फाकी मार रहे हैं पूरा, है ना? हाँ यूसुफ, हाँ सर। फिर सबने लिख लिया? इज एवरीवन डन? ठीक है, देखिए अब आपके पास होमवर्क रहेगा कुछ, ठीक है ना। होमवर्क क्या है हम आपको बता देते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। देयर आर सम कॉम्प्लेक्सेस जिसका आप लोग घर में जाके ना कीजिएगा। आई विल टेल यू द मैग्नेटिक डेटा आल्सो, कि आपको कहाँ पे पेयरिंग करनी है नहीं करनी है, बट वो होमवर्क होगा आपके लिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड। कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस का आपको करना है, ठीक है ना, और ये आप हमको भेजिएगा, ठीक है। यू विल सेंड दिस टू मी। आपने करना है Mn which is having Cn6 T नेगेटिव, और इसके बारे में हम आपको बता देते हैं, इसमें होते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे। सेकंड लिखिए, MnCl6 से भी 3 नेगेटिव है, बट यहाँ पे होंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। विल हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब उस हिसाब से आपको पेयरिंग करनी है नहीं करनी वो आप देख लेंगे। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये दोनों, सी ऑल बोथ ऑफ दीज आर व्हाट कॉम्प्लेक्सेस ऑफ Mn ओनली, एंड बोथ ऑफ दीज आर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ Mn3 पॉजिटिव, ठीक है। इफ यू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट इट विल बी 3 पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे एक क्या है, लो स्पिन और एक हाई स्पिन दिख रहा है आपको, है ना। जहां पे 2 अनपेयर्ड है, इट इज व्हाट, इट विल बी हैविंग लो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, 4 इलेक्ट्रॉन पे हाई स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा, राइट। सो लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। उसी तरह से देखिए, यू हैव Fe Cn6 P नेगेटिव, जिसमें होते हैं 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फोर्थ लिखिएगा, when you have Fe F6 P नेगेटिव, इस केस में होते हैं 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लिखिएगा
कोबाल्ट, और यहाँ पे देखिए C2O4 होल 3 नेगेटिव, ठीक है। इसमें होते हैं 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इट इज अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये बताइए गाइस इन द चैट प्लीज, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस फिफ्थ कॉम्प्लेक्स? इस फिफ्थ कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? सिक्स। चैट में बताने के लिए कहा था हमने। अरसलान आपको कितना लग रहा है, कितना होगा? सिक्स है। और 6 बाई 6 आपके मन में तो 3 था, लेकिन हमने आपकी नहीं, मन की 3 बात पकड़ ली। 3 था आपके मन में, 3 था या नहीं था, बताएं आप। नहीं सर। नहीं था, पक्का नहीं था? तो बताएं फिर, एक्सप्लेन करें हाउ 6, यहाँ तो 3 है। 6 कैसे हो गया? आप ये क्लास में थे या नहीं थे, बताइए तो। दिस क्लास, हैव यू रिटन ऑल ऑफ दीज थिंग्स? ओह यस सर, इसको मैंने लिखा था। जिसको आपने लिखा था, उससे पहले आप एम्बिडेंटेट लिगेंड कोऑर्डिनेट ये सब आप सही हाँ, से हाँ। लिखा था या नहीं किया ना? ये सही है, हाँ सब हाँ, तो लिखा नहीं है। लिखा था कि कुछ ही बता लिखा है आपने? यस सर। हेक्साडेंटेट, डेंटेट, तो फिर ये आपको बताया था ना, बाइडेंटेट में C2O4 में क्या होता है, दो जगह कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है ना, इट कैन कोऑर्डिनेट फ्रॉम 2 प्लेसेस, तो 2 into 3 6 होगा। इरम आपको याद है, आप किस क्लास में इरम? ठीक है, Yes, है ना? ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। दीज आर होमवर्क्स, और आपको कुछ होमवर्क मिलेगा जो आपको लर्निवियो भेजेगा। सो इन लर्निवियो इफ द टीम सेंड्स यू एनी होमवर्क ना, और उसमें कुछ देयर विल बी सम ओवरलैपिंग भी हो सकता है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, एक सवाल देखिए जरा, इस तरह के सवाल जब आएंगे आपके पास, है, इस तरह से जनरली सवाल आएगा अगर आपके पास यूनिट टेस्ट वगैरह आने वाला है, आपके लिए आने वाला है, तो देखिए, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट NiCN4 आयन विद स्क्वायर प्लेनर इज डायमैग्नेटिक। देखिए, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल डेटा दे दिया ना, एक्सपेरिमेंटल डेटा, NiCl4 आयन विद टेट्राहेड्रल इज पैरामैग्नेटिक। अब आपको समझ में आया ना, कहाँ पेयरिंग करनी है, कहाँ पेयरिंग नहीं करनी है? अरे बोलो भाई, नहीं समझ में आया? समझ में आया ना? तो जैसा हम लोगों ने सीओ के साथ किया था, एक तो ये सवाल भी लिख लीजिएगा आपको, ठीक है ना। देयर विल बी सम ओवरलैपिंग, आप सवाल लिख लें, सवाल आपको सारे करने, ठीक है ना, जो आपको वहां से ही भेजे। अब उसी तरह से यहाँ पे देखिए, ये सारे सवाल है ना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन के सारे सवाल हैं। एक तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो अभी आपसे नहीं होगा, बिकॉज हमने CFT नहीं देखा है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अभी हम लोगों ने नहीं देखा है। बट इफ यू लुक एट दीज क्वेश्चंस, देखिए, ऑल ऑफ दीज आर इंटरेस्ट क्वेश्चन जो जनरली आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल एज इट इज आ जाते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये तो हमने देख लिया, NiCl4 2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक, व्हाइल NiCO4 इज डायमैग्नेटिक, दो बोथ आर टेट्राहेड्रल, व्हाई, ठीक है। तो इसमें भी आपने क्या करना है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, यानी कि यहाँ पे चलिए, ये तो आपको ना ये करना पड़ेगा, इसको आप छोड़ दीजिएगा, दिस विल बी एक्सप्लेन ओनली आफ्टर CFT, इसको छोड़ देना है आपने। यहाँ पे आप कर सकते हैं, इट इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक वेयर FeCN6 इज वीकली पैरामैग्नेटिक। वीक, अच्छा, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या हो गया, हाई स्पिन, है ना। वीकली पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या हो गया, लो स्पिन। अगर आपके पास हाई स्पिन है, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, देन इट इज गोइंग टू डू हैविंग देयर विल बी नो पेयरिंग, राइट। हाई स्पिन में नो पेयरिंग होता है, लो स्पिन में देयर विल बी पेयरिंग। उसी तरह से CONH3 हो 6 3 पॉजिटिव,
is an inner orbital complex, whereas NH3 whole 6 is an outer orbital complex. ठीक है, तो ये सारी चीजों में देखिए कुछ ना कुछ आपको डेटा एक्सपेरिमेंटल दिया हुआ है, इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल, आप उसी तरह से एक्सप्लेन करो, तो आपको कुछ हिंट दिया रहेगा कि पेयरिंग होगी या नहीं होगी। अब व्हेन वी विल लर्न CFT तो वहां पे आपको ना फिर पेयर उसकी जरूरत पड़ने ही वाली नहीं है। तो ऐसा कि आपका ये आखिरी सवाल है, हेक्सा एक्वा होना चाहिए था, hexa aqua manganese ion contains 5 unpaired electrons, while the hexa cyano complex contains only 1 unpaired electron. Explain using crystal field theory. ठीक है, तो यहाँ पे आपको crystal field theory की बेसिस पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। Then if you go at the end, ये आपके पास एक्सरसाइज में जो इस तरह के सवाल है, डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑन द बैलेंस ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखिए ना यहाँ पे किसी में भी ना उन्होंने कुछ बताया नहीं है, राइट, दैट ये इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा। सो इन सारे सवालों को हम डील करेंगे जब व्हेन वी हैव डन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके बाद ही इनको डिस्कस किया जाता है। लेकिन एनसीईआरटी ने क्यों बैलेंस बॉन्ड थ्योरी करने के लिए कहा है, वो उसने इस वजह से कहा है क्योंकि टेक्स्ट बुक में ही, इफ यू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, तो ये देखिए FeCN6 FeF6 ना, ये सारे हमने दिए हैं, FeCN6 FeF6 कोबाल्ट में C2O4 और COF6, इसके बाद एक और था COF6 का, ठीक है, जिसमें देयर विल बी सम अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ऑल ऑफ दीज डेटा आर ऑलरेडी गिवन इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के ही, इसमें लिखा हुआ है इसमें इतने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें इतने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। सो एनसीईआरटी इज सपोजिंग कि बच्चे क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक देख के उसमें यहाँ पे आपके पास FeCN6 के इलेक्ट्रॉन है, उसको लिख के बता देंगे कि यहाँ पे पेयरिंग होगी या यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारे सवाल वी विल बी डिस्कसिंग ओनली आफ्टर द नेक्स्ट क्लास CFT के बाद, आफ्टर वी आर डन विद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब आपके पास बस एक काम बचा है, आपने लिखना है लिमिटेशंस ऑफ, लिखिए जरा हेडिंग लिमिटेशंस ऑफ VBT, लिमिटेशंस ऑफ VBT। Did you take a screenshot guys? इसका होमवर्क का स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों ने? Yes, sir. नो बोला या नहीं बोला? Sir. हाँ ले लीजिए। Everyone, चलें? Yes, sir. ठीक है, लिमिटेशन ऑफ VBT में तो आपको याद करना पड़ेगा। देखिए लिमिटेशंस का जो बेस्ट प्लेस होता है ना, लिमिटेशन का बेस्ट प्लेस होता है अगली थ्योरी को पढ़ाने के बाद। मतलब आप अगर लॉजिकली सोचें तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि जिसने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी होगी उसी ने बता दिया होगा कि ये इसके लिमिटेशंस है। ठीक है, इसी वजह से लिमिटेशन तो आप लोग लिख लीजिए, लिमिटेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद, क्योंकि अनटिल अनलेस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है तब तक हमको VBT के लिमिटेशन कैसे पता हो सकते हैं। हम लोग एक कोई नया थ्योरी देंगे जो ज्यादा चीज एक्सप्लेन करेगा, only can say ना जो VBT था was not explaining this and this, that is why we have got crystal field theory, उसने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की। एक चीज तो आपको सबसे पहले पता ही है, इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ assumption का मतलब क्या है। इफ यू रिमेंबर दैट हमारे पास assumption एक तो सबसे पहला ये है that we should have experimental data, अगर experimental data नहीं है आपके पास then you cannot do anything, right? दूसरी चीज, it does not give the quantitative interpretation of the magnetic data। जैसे कहीं पे आपके पास पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग नहीं हो रही है, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव, इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा का मतलब अगर कोई पैरामैग्नेटिक है तो VBT ये नहीं बता पाता कि पैरामैग्नेटिक है तो कितने इलेक्ट्रॉन वाला पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, बेसिकली इससे ही मतलब। अनदर है, इट डज नॉट गिव द थर्मल, ये सारी चीजें बाद में समझ में आएंगे आपको, वी कैन नॉट एक्सप्लेन दिस अंटिल वी हैव डन। Also, it does not make exact prediction regarding the tetrahedral and square planar structures of 4 coordinate complexes। ठीक है, ये डायरेक्टली बता नहीं सकता व्हाट इज द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और कौन सा स्क्वायर प्लेनर होगा until and unless you give it the
एक्सपेरिमेंटल डेटा, आप उसको एक्सपेरिमेंटल ही डेटा दो तभी जाके वो बता पाएगा। एंड अनदर थिंग, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। ये भी चीज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिड डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक लिगेंड्स एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, इसी वजह से इन्होंने इसको वीबीटी में दिया हुआ। ठीक है, आप इसको लिख लें, मेनली आपको समझ में आएगा जब आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कर लेंगे। तो राइट दिस 6 limitations of VBT.